सेजल मैं वापस से पूरा आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी, आराम से फोकस कर, समझ में आएगा तुझे, ठीक है? Can I explain? हाँ ओके ओके, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड ना, सबको आ जान दे वरना तुझे एक और रिपीट कर देना पड़ेगा। वापस वही बोलेंगे यार। ओके सारे शर्मीले लोग जो भी स्विच ऑफ करके बैठे हो कैमरा स्विच ऑन कर दो, कोई आपको नजर नहीं लगाएगा, कितना भी आप सुंदर दिखते हो, जितने भी हैंडसम दिखते हो, आपको कोई नजर नहीं लगाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। मैंने नजर लगाने वाला ऑप्शन भी ब्लॉक कर रखा है, ठीक है? ओके अदनान, आप रे इतना इतना क्यों कर रहा है, इतना क्यों? बायो लेक्चर में तू ओके चल स्टार्ट करें। हाँ एक मिनट, एक मिनट, आई विल शेयर द वाइट स्क्रीन एंड देन महक यू कैन स्टार्ट। महक एक बार अटेम्प्ट कर रही है एक्सप्लेन करने का, शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। Yes, sir. So my screen is थोड़ा छोटू, तो can you just draw and I'll explain? हाँ, I'll do that. Yeah. So now, okay. So this is a cell, normal cell, and the red part, that entangled part, is the genetic material. Okay. Now, in case of bacteria, they have an extra, what do you call, cell organelle types, which is called plastid, right? Plasmid, sorry. हाँ तू नए नए अभी डाउट्स क्रिएट करेगी। प्लास्टिड, ओके रुक, नोटेड। Sorry. This should be my next question. Plastid No, has no, to be. guys, I'll go slow, but let me explain now. Okay, so bacteria have this extra thing which is known as plasmid. Now let's go out of the case. When we get, bacterial infections or something, doctors recommend us antibiotics. These antibiotics kill bacteria. Now, like, it's for the defense of the bacteria, even if the bacteria needs to stay, right? So the bacteria has this plasmid, which has this certain part of gene which is resistant to it, which is resistant to the antibiotic. That is known as the resistant part. Now the antibiotics we are talking about is, I forgot the name. 1 second. Ampicillin. Yeah, it's ampim. Sir, बोल दो ना. Tetracycline बोल दे मैं. Yes, yes, very good. अच्छा दिमाग लगाया सूरज। सूरज ने क्या किया, सिंपल वाला यूज कर लिया, वेल डन। बाकी लोग बर्बाद कर रहे थे नाम को, एम्सिलिन, एमपी कुछ तो कर रहे थे, एम्पियर एम्पियर, वोल्ट्स वोल्ट्स। टेट्रासाइक्लिन इज अ कॉमन टर्म, टेट्रासाइक्लिन you can use, or ampicillin, but you should so know both these Mansi, terms. so Mansi, ampicillin and tetracycline are antibiotics which are used for bacterial infections or something. Okay, and Sejal, this circular thing is known as plasmid. It's an extra genetic thing, and it has a part of genetic information which is resistant to the antibiotics that you are using. Sejal already has next question. Sejal already has next question. Nonsense. Well, Dr. Sejal, Plasmid bring explain it कर ली. on. She has plastid now next. What is plastid, by the way? You said that at the start of नहीं your है. conversation. Guys, clear? Is anybody else having an issue? प्लास्टिड है भी, प्लास्टिड भी होता है कुछ, क्या होता है प्लास्टिड? सर प्लांट्स में होता है, प्लांट्स पे प्लांट्स में होता है सर वो. तो Mehak, you haven't discovered any new term. Plastid is a term actually. Plastid Yeah, is there I in know. green. मैं mix up कर रही हूँ. सर पिगमेंट को बोलते क्या? Plastid is a pigment which is present present in plants, and it has many types. See, plastid. Let us not go to plastids because So it is another cell organelle now. Yes. It is a cell organelle. It is a cell organelle. Okay, चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ पूरा रिपीट करने का, एक बार सुन लो and then let us go into the doubts. ठीक है? प्लीज आस्क मी इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट। महक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं वापस से एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ राज,
सर जो मतलब प्लास्टिड है वो मतलब जो पिगमेंट मतलब आपने नहीं बताया ना नहीं मतलब राज, पिगमेंट ही है। नहीं नहीं, रुक जा हाँ प्लास्टिड प्लास्टिड नहीं, डिस्कशन में ही नहीं है, प्लास्टिड क्यों नहीं डिस्कस सर, करना है? पिगमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ सर, पिगमेंट के बारे में। ओके पूछ पूछ। सर वो जो फोटोसिंथेसिस में मतलब यूज होता है क्लोरोफिल ए ये सब रहता है ना, क्लोरोफिल बी ये हाँ सब, तो ये भी सब प्लास्टिड। करेक्ट है, दे आर टाइप ऑफ प्लास्टिड, दे आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सर क्लोरोप्लास्ट रहेगा ना? प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें से क्लोरोप्लास्ट में जो तू बातें कर रहा है ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, ओके यस सर। ओके, चलो वापस इधर आते हैं। मेरिन तेरा डाउट पूछ ले पहले। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि प्लास्मिड सेल डिवीजन के लिए भी यूज होता है क्या? हाँ प्लास्टिड, प्लास्टिड इज प्लास्मिड, मिड प्लास ये sorry sorry, plasmid is self autonomous, so if you study division, you study division of plasmid itself, it will not cause division of cell, it is self हाँ autonomous, even it replicates, so that is what we are trying to use, that is something we are trying to explain. Okay, so now plasmid करेगा ना? हाँ खुद से रेप्लिकेट हो सकता है जो फायदेमंद है, जिसका मुझे फायदा उठाना है। चलो ये देखो, ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये नॉर्मल एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, बट उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और वो डीएनए बैक्टीरिया के किस काम का, पहले वो हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, सो बैक्टीरिया ने क्या बोला, बैक्टीरिया ने बोला अगर तुम लोग दवाइयां बना रहे हो मेरे अगेंस्ट, तो मेरे पास भी मेरा एक हेल्पर है जिसका नाम है प्लाज्मिड, जो उन दवाइयों को मारने के लिए एंजाइम्स बना रहा है। समझा स्टूडेंट्स? समझ में आया? अदिति समझ में आ रहा है? अदिति कांगने? हाँ ओके गुड। देख आराम से, टेक इट इजी, आराम से समझो, बहुत सिंपल है, इतना डिजर्व भी नहीं करता उतना टाइम जितना टाइम हमने उसको दे दिया है। ठीक है, सो प्लाज्मिड के पास एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस से प्लाज्मिड क्या बनाते हैं, ये देखो, इस सपोज इस सीक्वेंस, ये दिस इज दैट सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस क्या प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स? एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये एंजाइम जाके इट विल डिस्ट्रॉय योर एंटीबायोटिक। अंडरस्टूड? इट विल डिस्ट्रॉय योर एंटीबायोटिक। यस Specifically किस type का enzyme? okay, which type of enzyme? ठीक है, so that enzyme would be something which is related to the chemical structure of your drug. Understood? So we have identified कि this enzyme, we have identified 2 sequences, ampicillin, tetracycline. suppose मुझे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, मैंने एम्पिसिलिन खाया, डॉक्टर ने मुझे बोला एम्पिसिलिन खा लो ठीक हो जाओगे, बट मेरे अंदर जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, this plasmid is intelligent enough to produce an enzyme which is going to destroy ampicillin. So जैसे मैं एम्पिसिलिन खा के अगर बैठ जाऊं कि डोंट वरी मैंने एम्पिसिलिन खा लिया, मेरा इन्फेक्शन तो खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया इनसाइड मी आर गोइंग टू गेट किल्ड बिकॉज आई हैव टेकन एम्पिसिलिन व्हिच इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इफ आई से दैट, इफ आई अज्यूम दैट एंड इफ आई स्टे काम, ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, डोंट यू थिंक ऐसा नहीं होगा? जो एम्पिसिलिन मेरे बॉडी में गया, उस एम्पिसिलिन को मारने के लिए ऑलरेडी प्लाज्मिड के पास एंजाइम्स हैं, राइट है? तो ये एम्पिसिलिन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसको ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बताओ मेरा इन्फेक्शन रहा या ठीक हो गया? रहा। I mean, It is still there, correct? It is still there. Shabash, very good, very good. So can I now say कि plasmid is a savior for bacteria? Can I say that? Yeah. Yes. Understood? Yes. चलो अभी ये पॉइंट तो एक क्लियर हो गया, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमने तो ये सर जान लिया कि अगर एम्पिसिलिन को वो मार देते तो एग्जैक्टली एम्पिसिलिन वो बैक्टीरिया को कैसे निकालता है बाद में, मतलब नहीं, कितने नहीं समझा। अमाउंट में सब रहता है? ओके आपने ओके, मतलब फिर ठीक कैसे होंगे? आई अंडरस्टूड। नहीं, उसका क्वेश्चन कुछ और था, वो ठीक होने वाले पे भी आ जाते हैं। चलो, तो पुष्टि का क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो कितने अमाउंट ऑफ एम्पिसिलिन आएगा, उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन निकलेगा, कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम निकलेगा, क्या अटैक होगा, इज दैट सो पुष्टि? ओके अंडरस्टूड। नाउ दैट इज इट इज क्वांटिफाइड व्हेन आई डू प्री क्लिनिकल स्टडीज। समझा? जब मैं दवाइयों की स्टडी कर रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में आया कि ये दवा दिन में कितने बार दूंगा तब जाके बैक्टीरिया को मार देगा, 3 बार दूं या 5 बार दूं या 2 बार दूं। तो उसी तरह से डॉक्टर तुझे लिखता भी है कि ये दवा 2 बार खा लेना, मतलब 2 बार में इतना अमाउंट तेरे बॉडी में चला जाएगा जो बैक्टीरिया को मार सकता है।
सो इफ इन केस बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है कि नहीं मारने दूंगा, मैं ही तुझे मार दूंगा, सो बैक्टीरिया उससे तो ज्यादा ही अमाउंट बनाता रहेगा। एंड ये हमने मैच नहीं किया कि कितना कॉन्सेंट्रेशन किसको मारेगा, नहीं, बिकॉज टैबलेट विच यू आर ईटिंग पुष्टि, इवन दैट टैबलेट का 100% इज नॉट गोइंग इन योर ब्लड unless it is injection form. Clear? Understood? Next, one more thing. एक मिनट अदनान, एक मिनट, one more thing. Now ampicillin is in your system, तेरे ब्लड में है पुष्टि, ampicillin is in the blood. एम्पिसिलिन का क्या अटेम्प्ट था पता है? बैक्टीरिया के वॉल को ब्रेक करने वाला था, वो बैक्टीरिया के वॉल को तोड़ के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये बोल के अंदर गया था। बोला पुष्टि यू डोंट वरी, I am going to go inside your blood and I am going to kill that bacteria. How? I am going to cut this cell wall. उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, उसको मैं कट कर दूंगा और वो मर जाएगा। Why do I say that? Because ampicillin is a beta lactam antibiotic. ठीक है, इसी कैटेगरी क्या है, बीटा लैक्टम। तुझे उसका कोई भी जरूरत नहीं है, और मैं इन्फॉर्मेशन तुझे वो बता रहा हूँ। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, ये बीटा लैक्टम की फैमिली का है, पेनिसिलिन की फैमिली का है एम्पिसिलिन। तो इसका प्लान क्या था? सेल वॉल को, मेम्ब्रेन को कट करके फेंक देना, बट जब तक ये वहां पे जाए इसी को एक केमिकल ने मार दिया। वो कौन सा केमिकल है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसने जो प्रोड्यूस किया बैक्टीरिया के प्लाज्मिड ने। इज दैट क्लियर? पुष्टि समझ में आया? अंडरस्टूड? सर वो बीटा वगैरह याद रखना कंपल्सरी नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ भी कंपल्सरी नहीं, कुछ भी टेंशन, जो स्क्रीन पे उतना ही याद रखना बस। ओके, चल, should I go ahead? Anybody else has any doubt? सर ये सरदर्द से भी रिलेटेड है क्या? जैसे सरदर्द होता है तो एक दवाई खाते हैं लाइक डोलो 650, लेकिन अगर आफ्टर 4 घंटे के बाद हम लोग को दूसरी खाना करते हैं, जैसे 4 घंटे तक अगर सर दर्द सही नहीं होता है तो 4 घंटे बाद फिर से खाते हैं ना, तो ये उससे कुछ रिलेटेबल है या? नहीं 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 नहीं, उस वहां मत जा। वो जो जहां जिसकी बातें कर रहा है उसको, उसका नाम है थेरेपेटिक विंडो। थेरेपेटिक विंडो से अपन कहीं भी आसपास भी नहीं है, उसको छोड़ दे, रिटर्न आ जा, ठीक है? तो गोइंग इनटू फार्माकोलॉजी। वाला सर, डोलो इज पावर, नो? वो दवाई का नाम नहीं है ना? डोलो इज ब्रांड नेम, करेक्ट, डोलो इज ब्रांड नेम। Brand, I'm asking, is it power or is it brand name? It is brand name. Dolo is brand name. Dolo contains paracetamol. Dolo 650 is the power. 650 is the amount, Okay. quantity. Okay, 650 is the power. Dolo is the name of the Brand name. dawai. Raja, Dolo is the name of the brand and paracetamol is what it contains. Perfect. So if I say Dolo, I'm referring to paracetamol. So you say Dolo. Layman says Dolo. Pharmacist will understand paracetamol. हाँ. So paracetamol कोई और ब्रांड का भी रहा तो भी वो वही काम करेगा जो ये काम कर रहा है। The important thing is 650 नहीं कहते हैं। सर मेन उसके अंदर डाइक्लोफेनेक रहता है। डोलो, सुन। डोलो इज NSAID, पैरासिटामोल 650 डोलो। समझ में आया? अभी डोलो एक ब्रांड है, उसके एक्सटेंशंस हैं अवनीश। डोलो के एक्सटेंशंस हैं, जैसे जीरोडॉल का एक्सटेंशन। जीरोडॉल एक ब्रांड है, उसके बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। अपन फार्मा में घुस रहे हैं अननेसेसरली, ठीक है? वहां नहीं जाते हैं। हाँ सर। ऐसा होता है, देख, एक पेन किलर के साथ पैरासिटामोल अटैच होता है, समझा? पैरासिटामोल इज आल्सो पेन किलर, बट जब मैं NSAID लूंगा लाइक डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफिनेक, कीटोरोलैक, पायरोक्सिकैम, मेलोक्सिकैम, ऐसे बहुत सारे, मेफेनेमिक एसिड, मेफ्टाल्सपास तो पता है? हाँ सर, दैट इज मेफेनेमिक एसिड, NSAID। सो NSAID होता है, उसके साथ पैरासिटामोल आता है। If paracetamol is combination, it will सर ज्यादातर डाइक्लोफेनेक टैबलेट और ये पेन किलर्स के साथ पैरासिटामोल रहता ही है PCM। हाँ सर, PCM कॉमन है। हाँ, and why is that so? Because का mode of action fast है, within 15 minutes it will give you action. Within 15 minutes, it is centrally acting. ठीक है? Let us not go deep into this. It is totally unnecessary. ठीक है? चलो आगे चलते। So मुझे प्लाज्मिड का एक फंक्शन समझ में आ गया। प्लाज्मिड की दूसरी खास बात क्या है पता है? ये तो मैंने समझा, अच्छा चल बैक्टीरिया के काम का है यार, ये तो बात मेरे काम का थोड़ी है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। देन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला, स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि प्लाज्मिड के पास, इस चैप्टर में मेरे काम का क्या है वो भी सुन लो। प्लाज्मिड के पास एक और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट फाइटिंग कर सकता है प्लाज्मिड। वो कौन सा एंटीबायोटिक है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये भी बात मेरी क्लियर हो गई। देन
एक और काम जो मेरे काम का, अब तक तो इसने सब बैक्टीरिया का काम किया, मेरे काम का क्या, मुझे कहाँ पे, मेरा कहाँ पे ध्यान गया, प्लाज्मिड को कुछ भी हो जाए, प्लाज्मिड को कुछ भी हो जाए, बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? प्लाज्मिड ने, बेचारे ने बैक्टीरिया के लिए कितना काम किया कि बैक्टीरिया तुझे दवा नहीं मार पाएगा, मैं दवा को मार दूंगा, तुझे टेट्रासाइक्लिन कुछ नहीं करेगा, मैं टेट्रासाइक्लिन को मार दूंगा, मैं एम्पिसिलिन को मार दूंगा, टेंशन मत ले। बट प्लाज्मिड को कुछ हो जाए तो डीएनए को, बैक्टीरिया को फर्क भी नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? दैट इज वन थिंग विच आई शुड रिमेंबर। ठीक है? सो आई कैन प्ले विथ प्लाज्मिड, आई कैन प्ले विथ प्लाज्मिड, मैं प्लाज्मिड के साथ कुछ भी खिलवाड़ करूं, बैक्टीरिया बोलता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है कर प्लाज्मिड के साथ, मेरा उससे मतलब निकल गया, बस मेरा मतलब उससे पूरा हो गया। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विथ प्लाज्मिड। एंड सेकेंड थिंग इज, प्लाज्मिड को मैंने पूछा आर यू सेल्फ डुप्लीकेटिंग, डू यू डिवाइड? प्लाज्मिड बोलता है अरे रैपिडली, आई कैन डिवाइड रैपिडली, आई कैन डिवाइड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दो बातें हमारे दिमाग को क्लिक कर गई। कौन सी एक बात? इट कैन डिवाइड बाय इटसेल्फ। सेकेंड, इफ आई चेंज एनीथिंग इन द प्लाज्मिड, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वैसे ही मल्टीप्लाई होता रहेगा, वैसे ही ग्रो होता रहेगा जैसे पहले हो रहा था, जैसे कल हो रहा था वैसे ही आज भी ग्रो करेगा, इवन इफ आई पुट समथिंग न्यू इन द प्लाज्मिड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इतना बात समझ गया? Yes. Yes, yes, tell me. The Please ask. see, plasmid, if the plasmid is destroyed, then won't the bacteria lose its resistance to all these antibiotics? Absolutely perfect. Absolutely perfect. But that will happen if you are going to play with that genetic sequence. Hey, Prushti, don't you think if I'm going to play with this sequence, only then it will harm the chances of bacteria to sustain against that antibiotic? Yeah. Okay, got it. If I say कि I'm going to insert a new genetic material in this spot, is place over here, if I'm going to insert something new, I don't think so कि it is going to hamper the resistance power of bacteria. Plasmid का वो जो function है बैक्टीरिया को बचाने का, वो तो अभी भी रहेगा, because I have not done anything over here. यहाँ पे मैंने कुछ भी mischief नहीं किया, कोई भी मस्ती यहाँ पे नहीं की है, तो ये काम तो होता ही रहेगा। ये भी नया आ गया। हाँ, if in case I insert something over here, which we are going to do by the way, जो अपन करने वाले हैं, if I insert something over here, यहाँ पे नया एक जीन डाल दिया तो एक सीक्वेंस तो गया, रेजिस्टेंस जो होता है उसका तो सीक्वेंस ही बर्बाद हो गया, है ना? इट इज लाइक अगर मैं बोलता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये सीक्वेंस था ड्रग को मारने का, मेडिसिन को मारने का, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 ABCD EFG 9 10, तो बीच के कहां गए 6 7 8 कहां गया, वो हमने निकाल लिया बाहर। सो नाउ दिस प्लाज्मिड कैनॉट प्रोड्यूस द एंजाइम, दिस प्लाज्मिड कैनॉट डिस्ट्रॉय एंटीबायोटिक, गया, प्लाज्मिड का रोल गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? सो वी कैन प्ले विथ प्लाज्मिड, बैक्टीरिया को इंपैक्ट नहीं आता। हाँ मेरिन सर, पर हम अगर वो जो ये पार्ट है जहाँ पे वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वहां पे अगर हम वो अपना फायदे वाला जो है वो इंसर्ट करे, तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ना जब वो रेप्लिकेट करेगा तो? हाँ, नहीं, कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। अपने क्यों नहीं होगा उसका भी एक रीजन है, अपन नेक्स्ट कंसेप्ट उस पे आएंगे। क्यों नहीं होगा इसका भी एक रीजन है। मतलब मेरिन को पता ही नहीं है कि वहां कहाँ जाने वाला है, मेरिन इज ब्लाइंड। अपन एक एंजाइम इस पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं वो एंजाइम अपने को कहाँ लेकर चलता है। वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस एज आवर ओला कैब, समझा क्या मेरिन? ये हमारे लिए ओला है, ओला अपने जीन के लिए ट्रैवल करना है अपने को इसमें। चलो मैं उस पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, कोई टेंशन मत लो। देखो, फर्स्ट लेट मी राइट 2 प्रॉपर्टीज दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। यस, पूछ। वो प्लाज्मिड के जो वो ओवरऑल मतलब हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होगा? क्या मुझे समझा नहीं, वापस पूछ तेजस। मतलब प्लाज्मिड में जो एंजाइम था, वो जो ग्रीन पार्ट था, वो हर एक जगह पे नहीं होगा? अंडरस्टूड। तो जो मेडिसिन को मारने के लिए जो सीक्वेंस होता है वो थ्रू आउट प्लाज्मिड नहीं होके कहीं कहीं होगा क्या? आंसर इज यस, कहीं कहीं ही होगा, स्पेसिफिक जगह होता है जहां होगा। ठीक है। एंड फिर हम लोग जो मतलब जो पार्ट पे नहीं है वो वहां पे एंटीबॉडीज अप्लाई करे तो? वहां पे क्या अप्लाई करे?
एंटीबॉडीज जैसे एम्फिसिलिन, टेट्रासिलिन, वो। ओके ओके, आई अंडरस्टूड। सो एम्पिसिलिन जो होता है वो बाहर ही एक्ट कर लेगा सेजल, वो सेल के अंदर जाके प्लाज्मिड को नहीं टारगेट करता। एम्पिसिलिन का टारगेट बैक्टीरिया जो मेम्ब्रेन है ना, ये है सेजल, ये एम्पिसिलिन का टारगेट। बट जब तक एम्पिसिलिन बेचारा यहाँ पे पहुंचे तब तक यहाँ से एंजाइम जाके बन के उसको ही मार डाला। एंजाइम आ ही जाते हैं, हाँ ओके। ठीक है, तो वहां तक रुकने की जरूरत ही नहीं उनको। चलो स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड्स व्हिच आई एम इंटरेस्टेड इन फॉर माय बायोटेक्नोलॉजी, from my biotechnology perspective. 2 points I am very much interested in. ठीक है अवनीश, सेजल, अली। यस सर। जो बोलना पड़ेगा कैमरा के लिए। नहीं सर, एक इशू था सर, मैंने सर आपको 2 मैसेज किया मिनट, था लेकिन शायद मेरा आपने पेन देखा गिर नहीं। गया। नहीं यार, मैंने मैसेज नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं। आयुषी बेड़ा, दिशा गौड़, शीतल, मनसी कारिया, सोनिया सिंह। ओके, कुछ कुछ नए नए नाम है। श्रेया यादव। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओह, why Geneva? Okay, sure, you can leave, no problem. नहीं, शीतल इज नॉट न्यू, बट बाकी जो नाम है जो नए नए दिख रहे हैं, मेक श्योर कि अगर आपको ना समझे तो यू आस्क मी, ओके। आप लोग भरोसा नहीं करोगे बट सेजल भी न्यू स्टूडेंट है ना सेजल? टेल देम यू आर न्यू स्टूडेंट। इवन देन सेजल अटैकिंग मोड पे, देखो कैसे धनाधन क्वेश्चंस पूछ रही। ओके, सो प्लाज्मिड, there are two reasons why I prefer plasmid. There are two reasons why I prefer plasmid. Self-duplicating, ठीक है। And the second reason is self-duplicating या self-dividing लिख दूं मैं आपके लिए, इसको self-duplicating बोलो या self-dividing बोल दो, वो भी बात चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात प्लाज्मिड की मुझे क्या अच्छी लगती है एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एक मिनट, चलो। So second baat which is important for me is we can change genetic sequences, if you understand. We can change genetic sequences. We can change genetic sequences of plasmid. We can change genetic sequences of plasmid. ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट तो क्लियर? वो जेनेटिक सीक्वेंस मतलब वही ना, वो एडेनाइन के साथ गुआनिन वो वाला? नहीं, ये देखिए, ये वाला अगर प्लाज्मिड ऐसा दिखता है ना, अगर प्लाज्मिड ऐसा दिखता है तो मैं इसमें से प्लाज्मिड का ये वाला पार्ट कट कर लूंगा। ये देखिए, इतना पार्ट मैं कट करके, इतना पार्ट कट करके कुछ और पार्ट इसमें इंसर्ट कर सकता हूं। ये देख, जैसे कि नाउ माय प्लाज्मिड वुड लुक समथिंग लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। समझ में आया? तो ये तो मैंने प्लाज्मिड में कोई तो नई चीज डाल दी ना। तो अगर मैंने नया चीज डाल दूं तो भी प्लाज्मिड को उससे फर्क नहीं पड़ता, बैक्टीरिया को भी उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है तुझे जो चेंजेस लाने हैं यू कैन ब्रिंग योर चेंजेस, जो भी चेंजेस लाने यू कैन ब्रिंग चेंजेस। ये सिर्फ हम लोग कर सकते, बैक्टीरिया खुद नहीं ना? नहीं, बैक्टीरिया खुद क्यों करेगा, बैक्टीरिया खुद नहीं करेगा। ये बायोटेक्नोलॉजी करने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी ने ये पता लगा लिया ना, बायोटेक्नोलॉजी को ये दो बातें समझ में आ गई कि अपन चेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इट इज सेल्फ डुप्लीकेटिंग। तो इसका क्या फायदा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है बात? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये दो बातें समझ में आ गई? ओके, तो आप पूछोगे इसका फायदा क्या? व्हाट इज द एडवांटेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एडवांटेज? आई एम रेडी टू चेंज द सीक्वेंस, बट व्हाट इज द एडवांटेज? सपोज दिस इज वन जीन,
विच आई नीड, ठीक है। ये जीन का मुझे कितना कॉपी चाहिए, जैसे आप पेपर ले लेते हो, आपको एक आपको क्वेश्चन पेपर सपोज मिल गया, ठीक है, कि बोर्ड्स के एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, वृष्टि के पास क्वेश्चन पेपर आ गया, सो व्हाट वृष्टि विल डू, लाइक अ ट्रू फ्रेंड शी विल कन्वे दिस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, शी विल नहीं सॉरी, शी विल फर्स्ट क्रिएट अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे वो शी विल मेक श्योर कि टीचर्स आर नॉट देयर, शी विल मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स ही रहे, कोई भी इडियटनेस करेगा नहीं, ये क्वेश्चन पेपर मिल गया मुझे, किसी को चाहिए तो अपन जेरोक्स मार सकते हैं, ठीक है। अभी आजकल तो क्या है, व्हाट्सएप का जमाना है, फोटो लेकर भेज दिया, अदरवाइज अगर मुझे जेरोक्स चाहिए सो आई कैन गेट इट जेरोक्स्ड, कॉपी बहुत सारी बन सकती है। वैसे ही अगर मेरा ये जो जेनेटिक सीक्वेंस है रेड वाला, मुझे इसकी कॉपीज चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, उस जेनेटिक सीक्वेंस को प्लाज्मिड में इंसर्ट कर, समझा, प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। एंड लेट अस नॉट फॉरगेट दिस प्लाज्मिड इज इनसाइड दिस बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है ब्लैक कलर का। नाउ अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अलाउ दिस बैक्टीरिया टू फ्लरिश, लेट अस अलाउ इट टू डिवाइड। बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, अगर बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, टेल मी ट्रू और फॉल्स, ओके, इफ बैक्टीरिया इज डिवाइडिंग, कैन आई से प्लाज्मिड विल आल्सो डिवाइड? True. Yeah. यस सर। प्लाज्मिड विल आल्सो डिवाइड, अगर बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा तो प्लाज्मिड विल आल्सो डिवाइड, राइट है अदिति, राइट है अदिति, है ना, शाबाश, ओके। अदिति कांगने एंड अदिति, सेकंड अदिति, अंधेरी वाली अदिति, Yes, sir. अदिति व्हाट इज योर सरनेम? Aditi. अच्छा, अदिति गायकवाड़, अदिति कांगने, एंड थर्ड अदिति का सरनेम बता, अदिति व्हाट इज योर सरनेम? Hello, sir. Can you hear me? नहीं, नाउ आई कैन हियर यू। Yeah, Aditi Thakkar. अदिति ठक्कर, यस आई एम सो सॉरी, मुझे याद था, मैं भूल गया, अदिति ठक्कर, ठीक है। सो नाउ मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इफ बैक्टीरिया इज गोइंग टू डिवाइड, प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा, इफ प्लाज्मिड इज गोइंग टू डिवाइड, डोंट यू थिंक आपका ये जो जेनेटिक सीक्वेंस था ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना स्टूडेंट्स, इवन दिस इज मल्टीप्लाइंग, even this is multiplying, so this is how I'm going to create copies and copies of my genetic sequence which is of my use. समझ में आया? Therefore biotechnology is so much interested. Yes. सर जो उसका कॉपी बनेगा उसमें भी उतना ही पार्ट वो होगा ना जो हम लोग ने न्यू बनाया है, कि पूरा मतलब नए वाला ही बन के आएगा? नहीं, पूरा प्लाज्मिड ऐसे ही सेम ऐसे ही दिखेगा प्लाज्मिड, और जितना मैंने इंसर्ट किया उतना ही सीक्वेंस का बार बार कॉपी बनेगा, अंडरस्टूड सर? हाँ सर बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ही प्लाज्मिड डिवाइड होगा, या फिर वो इटसेल्फ मतलब डिवाइड कर सकता है, तो मतलब अगार या फिर उसमें कुछ रखे और वैसे कंडीशन नहीं, we cannot initiate division of just plasmid out of the body of bacteria. Plasmid will have to divide with bacteria. Okay. So we will have to insert back plasmid into the bacteria and divide करवानेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट? इसका फिर हम लोग इधर पे सेल्फ डुप्लीकेटिंग, तो मतलब इसके बैक्टीरिया के साथ ना? हाँ, यस, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया के अंदर ही लोकेलिटी में होगा, उसलिए वो बाहर आके नहीं डिवाइड होने का, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये देखो, अभी मैं ये पूरा प्रोसेस एक यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो अपने समझ में आ जाए अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो ये रहा, ये एक जेनेटिक सीक्वेंस है, ठीक है सर। ये जेनेटिक सीक्वेंस रेप्लिकेट होता क्यों है? जेनेटिक सीक्वेंस रेप्लिकेट क्यों होता है या क्यों कर रहा हूँ? हाँ सर, वही कुछ क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहे हो? हाँ वही बोल दो। ओके, अंडरस्टूड। चल मैं तुझे इसका रीजन बता दूं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमको इंसुलिन अपने पास बन रहा है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो मैंने ये देख यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ओके। सो इफ आई हैव, ये देखो, ये एक जीन है स्टूडेंट्स जो मुझे क्या बना के देगा पता है? ये जीन मुझे बना के देता है इंसुलिन, ओके, ये जीन मुझे बना के देता है इंसुलिन, ठीक है, ये बात क्लियर है?
ये जीन मुझे बना के देगा इंसुलिन। इफ आई वांट टू प्रोड्यूस मैनी, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसुलिन, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि बैक्टीरिया बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, एंड बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, जिसके अंदर अपन ने कुछ भी इंसर्ट किया तो प्लाज्मिड को फर्क भी नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया को फर्क भी नहीं पड़ेगा। सो हमने क्या किया, वी ब्रॉट अ बैक्टीरिया ओवर हियर, दिस इज वन बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया हैज दिस क्रोमोसोमल पार्ट, जेनेटिक मटेरियल हो गया, एंड इट हैज अ प्लाज्मिड, है ना, ये देखो प्लाज्मिड ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपन ने बैक्टीरिया सेल से प्लाज्मिड निकाला, सो आई विल रिमूव दिस प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया, ये रहा मेरा प्लाज्मिड बाहर आ गया, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को, एंड ये रहा मेरा पूरा डीएनए, ये देखो स्टूडेंट्स, ये मेरा एंटायर डीएनए है, ये देखो ये पूरा डीएनए है। डीएनए में खाली रेड वाला पार्ट मुझे चाहिए, पूरा डीएनए नहीं चाहिए मुझे, खाली रेड वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। मुझे पूरा डीएनए नहीं चाहिए, मुझे खाली रेड वाला पार्ट चाहिए। तो एक सीजर लूंगा मैं, सीजर, ये सीजर पे मैं डिटेल में आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ये सीजर क्या चमत्कारी सीजर है, मैं इसको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने एक सीजर ले लिया, उस सीजर से मैं क्या करूंगा, इंसुलिन वाले पार्ट को कट कर लूंगा, ठीक है, इसमें से अलग कर दूंगा। सो ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखो इतने पार्ट को अपन ने बाहर निकाल लिया सीजर यूज करके। आई विल कॉल इट एज मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर, ये शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा, मॉलिक्यूलर सीजर। सेम 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 सीजर यूज करना है ऑन प्लाज्मिड ऑल्सो, सेम सीजर यूज करूंगा प्लाज्मिड पे भी, ताकि उतना ही लेंथ का जेनेटिक सीक्वेंस निकाल सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो, इफ आई अप्लाई द सेम थिंग ऑन, सेम मॉलिक्यूलर सीजर ऑन प्लाज्मिड, देन दिस इज व्हाट आई विल गेट स्टूडेंट्स। ये देखो, ये देखो, ये क्लियर है, बताओ स्टूडेंट्स ये क्लियर है। सेम लेंथ का जेनेटिक सीक्वेंस हमने निकाल के फेंक दिया, ओके। इसमें सर किसी भी ग्रीन shape में कट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं सुनाई दिया मुझे। किसी भी शेप में वी कैन कट इट ना, किसी भी शेप, नहीं, उस पे आते, रुक जा, शेप पे आता हूं मैं, ठीक है। डिफाइंड होता है वो, कोई भी शेप नहीं हो सकता, डिफाइंड होता है वो। एक मिनट, पहले प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर उस सीजर पे मैं आता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने प्लाज्मिड कट कर दिया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम, इन दोनों को इकट्ठे कर लो, चलो इन दोनों को इकट्ठे कर लो, तो क्या मिलेगा मुझे, ये देखो स्टूडेंट्स, क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया हमको, वेरी गुड, ये रहा। सो इसको क्या बोलते हैं, अपने तो कंबाइन करके बनाया ना इसको, तो अपन इसको कौन सा डीएनए बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए। क्लियर, आरडीएनए समझ में आ गया। लेकिन सर फिर आरडीएनए से राइबोसोमल डीएनए के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा ना। आरडीएनए राइबोसोमल डीएनए क्या होता है सूरज? राइबोसोमल डीएनए को भी आरडीएनए बोलते हैं ना, इसलिए। That is RNA. This is RDNA. RRNA सर। वाओ, सॉरी सर याद आया अभी। ठंडा पानी है, एसी भी है, कोई बात नहीं सूरज। चलो क्या करेंगे अभी, लेट अस पुट दिस बैक इनटू द बैक्टीरियल सेल। इसको वापस से कहां डाल दिया, सेम बैक्टीरियल सेल में डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ में आया किस्सा, समझ में आया? यस। तो अब मेरा बैक्टीरियल सेल कैसे दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। कैसे दिखेगा मेरा बैक्टीरियल सेल है, अब चेंज कर रहा हूं, ठीक है। आई एम चेंजिंग दिस नाउ, ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा ये। आई डिडंट गेट दिस। आई विल रिपीट, वेट। बैक्टीरियल सेल से हमने प्लाज्मिड निकाला, एंड उस प्लाज्मिड में हमने अपने पसंद का जीन डाल दिया, जिसका हमको कॉपी बनाना है। अंडरस्टूड? देन वंस इट इज इंटीग्रेटेड, प्लाज्मिड प्लस माय जीन,
जैसे इंटीग्रेट कर दिया, सो व्हाट डिड यू गेट, ये मिल गया तुझे, दिस इज rDNA, अंडरस्टूड। नाउ यू हैव टू पुट बैक दिस rDNA इनटू दिस बैक्टीरियल सेल, जहां से प्लाज्मिड निकाला था उसी सेल में वापस से डाल देना है। सो अब ये सेल में कैसा दिखाई देगा, ये देख ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये देखो स्टूडेंट्स, नाउ कैन आई सी द डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। सो दिस इज, क्या वर्ड यूज करना, ध्यान से सुनो, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल, क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल, शाबाश, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल, वेरी गुड। नाउ व्हाट वी विल डू, अभी इसमें क्या करना था, वृष्टि वांटेड कॉपीज ऑफ दिस डीएनए, वृष्टि वांट, पहले वाला बैक्टीरियल सेल था वो ना, हाँ क्या क्या क्या, वापस पूछ। सर ये इंसुलिन का चल रहा है ना अभी भी, पहले वाला जो बैक्टीरियल सेल था वो नहीं रहेगा ना अभी, वो नहीं, वही तो है, वही तो बैक्टीरियल सेल है ये। तो फिर आगे चल के प्लाज्मिड इसका ही कॉपीज बनाता रहे, क्योंकि आपने प्लाज्मिड का तो काम ही है क्या, खुद को रेप्लिकेट करना। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। सो अभी टॉपिक पे आते, चलो ध्यान दो ध्यान दो। सर एक डाउट, ये न्यू वाले को क्या बोलेंगे जिसमें हम लोग ने rDNA डाला? हाँ, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल, अंडरस्टूड, ओके। चलो आगे चलूं। सो दिस इज वन जीन जिसका मुझे बहुत सारा कॉपीज चाहिए था, राइट स्टूडेंट्स, इसकी कॉपीज चाहिए थी ना, तो इसकी कॉपी कैसे बनेगी, अब ये किसके अंदर है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। सो लेट अस नाउ अलाउ this bacterial cell to flourish. So now what I will do is I will allow this bacterial cell in a culture medium, culture medium ले लूंगा और उस culture medium में बैक्टीरिया को मल्टीपल कॉपीज बनने दूंगा, डिवाइड हो जा डिवाइड हो जा डिवाइड हो जा डिवाइड हो जा। सो ये बैक्टीरिया के कितने कॉपीज बन गए, एग्जांपल लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 इन सिटू में। सर ये एग्जैक्टली कल्चर मीडियम है क्या? ओके, कल्चर मीडियम मतलब बैक्टीरिया का खाना, कल्चर मीडियम मतलब बैक्टीरिया का खाना। सो बैक्टीरिया खा खा के उसको एक सपोज एक बीकर ले लिया, ठीक है, बीकर में मैंने बैक्टीरिया का खाना डाल दिया, उसमें ये वाला एक सेल जो है निकाल के डाल दिया उसी, ठीक है, समझ में आया। ये देख, ये रहा एक बीकर, इस बीकर में डिवाइड नहीं हो रहा ना ये जरा, अभी नहीं डिवाइड होगा, जब कल्चर मीडियम में डाल देंगे तब डिवाइड होगा। सर क्लियर सर, हाँ बोल बोल बोल। यस नहीं सर, हो गया, समझ गया। So this bacterial cell I am going to put it in a culture medium and this culture medium is like a food for the bacteria. So bacteria ये food खाएगा and वो divide हो जाएगा। सारे conditions अपन ऐसे maintain कर रहे हैं, temperature, pressure, pH, everything will be maintained properly so that bacteria should divide rapidly, ठीक है। and जितने भी बैक्टीरिया के कॉपीज बनेंगे साथ साथ में हमारा rDNA पे रेडी हो जाएगा। डू यू अग्री स्टूडेंट्स, rDNA की भी कॉपीज बन जाएंगी। ये देखो ये देखो कितना, एक से हमको कितना मिल गया, देखो एक से कितना मिल गया, कितना सारा मिल गया, कितना सारा मिल गया, कितना सारा मिल गया, समझा, समझ में आया। बैक्टीरियल ने रेप्लिकेट किया तो साथ में हमारा जीन भी रेप्लिकेट होता गया, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, खाली बैठ के देख रहे। अंडरस्टूड, इज दिस क्लियर स्टूडेंट? हाँ पूछ पूछ सर, पर अगर बैक्टीरिया ने कॉन्जुगेशन